शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास. Coulomb's law with the help of Gauss law. Suppose plus Q1 charge is placed at point 2. यहाँ पॉइंट 2 देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्लस Q1 पॉइंट चार्ज रखा है. And at a distance r from this charge, this is charge plus Q2. So form a imaginary Gaussian surface, spherical Gaussian surface of radius r whose center is at O. So this charge plus Q2 will be on the surface of that sphere. Now on this imaginary sphere, take a very small area element ds. Direction of this area element is perpendicular to the plane. So due to plus Q1 charge, suppose field at this point P is E. Now what Gauss law says? Gauss law says that charge enclosed, if charge enclosed within this Gaussian surface is Q1, then electric flux coming out of this sphere will be equal to Q1 by epsilon naught. Here it is, this phi is equal to Q1 by epsilon naught. Now small electric flux coming out of this small area ds, d phi will be equal to vector E dot ds, which is equal to E ds, because angle between ds and E is 0. The total flux coming out of this is Gaussian surface, phi is equal to इंटीग्रेशन ओवर दी होल सरफेस ई डी एस. हम क्या करेंगे कि जो छोटे छोटे ई डी एस से सबको जोड़ रहे हैं, इसी जोड़ने के लिए मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है. इस सर्किल का मतलब इंटीग्रेशन ओवर दी होल सरफेस. नाउ ई इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द स्फीयर, सो वी कैन टेक आउट दिस टर्म outside this integration. So phi will be equal to E surface integral ds. Now area of the sphere is 4 pi r square. So this phi is equal to E into 4 pi r square. This phi and this phi both are same. Therefore 4 pi r square E is equal to Q1 upon epsilon naught. So E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 by r square. So E at this point is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 by r square. Now force on this charge Q2 will be equal to, suppose we know that E is equal to F by Q2, so F is equal to E into Q2. So F will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by r square, which is Coulomb's law. This is in vector form. This unit vector r cap denotes the direction of electrostatic force on charge Q2 due to charge Q1. So this is Coulomb's law with the help of Gauss law. Now more applications of Gauss law. So electric field due to uniformly charged thin spherical cell, where at a point situated at a distance r from the center of the spherical cell and outside this cell, let radius of the cell is equal to capital R. So this, for this point of interest, small r is greater than capital R. This is a thin spherical cell of radius capital R, and suppose plus Q charge is uniformly distributed over its surface. ये एक कैपिटल आर रेडियस का थिन स्फेरिकल सेल है जिसकी सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. नाउ सपोज वी वांट टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सेल. सो हेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. तो व्हाट वी विल डू, टेक ए स्मॉल गॉसियन सरफेस ऑफ एरिया डी एस. यहाँ पर इस में हमने क्या किया है, पहले क्या किया है कि इस स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बनाया, स्फेरिकल इमेजिनरी है ये, और इसकी रेडियस इससे आर है क्योंकि पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड दी स्फीयर पॉइंट है, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है.
और इस स्फेरिकल सेल में, ये जो स्फेरिकल सेल के बाहर जो गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो है, दिस इज गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस पे एक स्मॉल एरिया ds लिया, ये ds एरिया है। सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, E ds। E और ds सेम डायरेक्शन में है, ये फ्लक्स होगा E डॉट ds। E ds सेम डायरेक्शन, तो ये बराबर हो गया E ds के। सो टोटल फ्लक्स passing through this Gaussian surface will be equal to integration E ds. Now E is constant at every point, so phi will be equal to E into integration ds क्या होगा, इस Gaussian surface का एरिया, और स्फेयर का एरिया क्या होता है 4 pi r स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 4 pi r स्क्वायर। नाउ बाय गॉस लॉ phi is equal to q by epsilon naught and phi is equal to E into 4 pi r square. Both flux are same, so comparing first and second we get is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. अब यहाँ पर एक पॉइंट और देखें कि अगर ये चार्ज स्फीयर ना होता कि यहाँ पर q चार्ज होता, तो q चार्ज से r डिस्टेंस पर भी E की वैल्यू यही होती है 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square। तो फील्ड कैसे बिहेव कर रही है, द फील्ड इज एज इफ द इंटायर चार्ज ऑफ द सेल इज कंसनट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो फील्ड ऐसे बिहेव कर रही है कि जैसे जितना भी चार्ज कहाँ पर है, यहाँ पर का, यहाँ है नहीं, लेकिन अगर यहाँ क्यू चार्ज होता और सेल ना होता तो फार्मूला ही होता है। तो फील्ड ऐसे बिहेव कर रही है जैसे पूरा चार्ज कहाँ कंसनट्रेटेड है, सेंटर ऊपर। नाउ इलेक्ट्रिक ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो इस सरफेस पे हमने गॉसियन सरफेस अब बनाई। फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाई गॉस लॉ, सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये E और जो ये E है ये डिफरेंट हैं। ये कहाँ के लिए है, जब सरफेस पर, स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। नाउ सपोज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो Q will be equal to sigma into 4 pi r square। तो पुटिंग Q is equal to sigma into 4 pi r square, यहाँ से हमको एक और फार्मूला मिल जाता है। यहाँ पर E हुआ 1 upon 4 pi epsilon naught into sigma into 4 pi r square by r square। This 4 pi r square and 4 pi r square cancels, so E is equal to sigma by epsilon naught। So if surface charge density on a charged sphere is sigma, then electric field intensity on its surface in terms of sigma will be equal to sigma by epsilon naught। Now electric field inside the cell, suppose this is a charged sphere। अब हम गॉसियन सरफेस कहाँ बनाएंगे, इसके अंदर स्मॉल आर रेडियस के, दिस स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं पास हो रहा है, तो फ्लक्स क्या आएगा, जीरो फ्लक्स होगा। phi is equal to into area, this is equal to into 4 pi r square। now इस गॉसियन सरफेस अंदर कोई चार्ज नहीं, तो q बाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, जीरो। सो दिस phi is equal to जीरो, इट मीन्स E is equal to जीरो। तो फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल इज, अब ये एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज ये एक स्फेयर है, थिन स्फेयर, स्फेरिकल सेल, इसके अंदर +2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो बाय गॉस लॉ phi is equal to q by epsilon naught। q is 2 माइक्रोकूलम, तो पुट द वैल्यू ऑफ q and put the value of epsilon naught which is permittivity of free space, solve it, you will get phi is equal to 2.26 into 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब अगर स्फीयर के रेडियस बढ़ा दें तो क्या फ्लक्स बढ़ जाएगा, नहीं। दिस फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज। सो इफ़ यू डबल द रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस देन आल्सो वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल बी सेम। नाउ फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर, अगर ये स्फीयर कैसा है, सॉलिड है, मेटल का है, सॉलिड है,
और इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन दैट केस आल्सो यू फॉर्म ए गॉसियन सरफेस, दिस इज फॉर यू passing through this point A, and E will outside the sphere will be 1/4 pi epsilon naught q by r square. This is square, q by r square. Okay, and on the surface E will be equal to 1/4 pi epsilon naught q by capital R square. सिमिलरली इनसाइड दी स्फेयर ई विल बी जीरो, क्योंकि कंडक्टिंग स्फेयर में जो चार्ज दिया जाएगा वो केवल उसकी सरफेस पर भी रिसाइड करता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहता। अगर नॉन कंडक्टिंग है इन दैट केस चार्ज होगा, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर। इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सिचुएशन विल बी डिफरेंट। नाउ एज इफ surface charge density is sigma, then on the surface E is equal to sigma by epsilon naught. This is in terms of sigma, surface charge density. So charge resides only on the surface of a sphere, charged sphere which is conducting. There is no charge inside the sphere. Now if we draw graph between E and distance R, take R on x-axis and E on y-axis, then graph will be like this. From center to the surface of sphere, inside the surface E is 0, and on the surface E is maximum, and as we go away from the surface E decreases like this. अब यहाँ देखें, मान लीजिए किसी भी शेप का एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, लेकिन कैसा है, कंडक्टिंग है, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा चार्ज डेंसिटी। सपोज चार्ज ये डिफरेंट शेप का है तो इसके डिफरेंट पार्ट पे चार्ज डेंसिटी डिफरेंट होगी, ये भी आप आगे पढ़ेंगे ये। तो हम क्या करेंगे, हमने एक बहुत छोटी डिब्बी के फॉर्म का सिलिंड्रिकल सरफेस लिया जो थोड़ा है बाहर फील्ड इसके कंडक्टिंग स्फीयर नहीं, कंडक्टिंग जो बॉडी किसी भी शेप की, और थोड़ा अंदर है, अंदर ई क्या होगा, जीरो होगा, तो इस प्लेन से निकलने वाला फ्लक्स जीरो है। फ्लक्स किससे, केवल इससे है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग बॉडी ऑफ एनी शेप विच इज चार्ज्ड नियर द बॉडी, ये जैसे चार्ज है इसके पास यहाँ क्या होगा, हम क्या करेंगे, बहुत छोटा सा सिलिंड्रिकल सरफेस लिया, स्मॉल छोटी डिब्बी की तरह, इसको पिल बॉक्स भी कहते हैं। तो फील्ड केवल इधर होगी, इधर से फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। सो फील्ड पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया डी एस, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू ई डी एस। नाउ बाई गॉस लॉ, फ्लक्स near the body, this is flux, a small flux, d phi is equal to E dot ds, d phi is equal to ds. Now by Gauss law d phi will be equal to q by epsilon naught। q क्या है, जो ये इतना एरिया ds है, ये इसमें इनक्लोज्ड चार्ज। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और ये एरिया ds है, तो q क्या होगा, सिग्मा इंटू ds। ओके, so by Gauss law d phi is equal to q by epsilon naught, this is equal to sigma ds by epsilon naught. Now you get first and second, we get E is equal to sigma by epsilon naught. So this is expression for electric field intensity near a charged conductor। ये नियर है, इससे बहुत दूर नहीं है, ठीक इसके सरफेस भी है, सरफेस के बिल्कुल पास, मोस्टली ऑन द सरफेस। और आगे आप पढ़ेंगे कि ये डिफरेंट शेप का है, स्फेरिकल नहीं है, तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे जहाँ पॉइंटेड वहाँ फील्ड ज़्यादा होगी, जहाँ पॉइंटेड नहीं है वहाँ फील्ड कम होगी, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है वहाँ फील्ड कम, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहाँ फील्ड ज़्यादा होगी। ये आगे पढ़ेंगे आप ये। और फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द सरफेस, और ये इसके परपेंडिकुलर होगी, and if it is negative then direction is towards the surface, direction will be towards the surface. In vector form you may write it like this, vector is equal to sigma by epsilon naught into unit vector
n cap. This is unit vector along the direction of field. Here sigma is surface charge density. So with this I am stopping the topic here.